अगर किसी का रिमूव होता है तो दोबारा से कर लेना। दोबारा से लॉगिन कर लेना अगर किसी का रिमूव हो गया हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन होता है तो जो बाहर से ऐड हुए होते हैं उनका चले जाते हैं वो। कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो गए होंगे शायद। एनीवे, so let us start. Only two have done that assignment and that is for your life. Yes, only two. Thank you Priyanshu, happy new year to you too. देख लो पहले दिन पहला असाइनमेंट, और कितने लोगों ने किया है? Ma'am, hello, ma'am. हाँ जी, यस। Yes. Ma'am, first of all, happy new year to you, ma'am. हैप्पी न्यू Happy ईयर। New Year. And ma'am, good afternoon. गुड Good आफ्टरनून। afternoon. Ma'am, I have prepared something on ma'am orientation program, ma'am. ओरिएंटेशन प्रोग्राम। Orientation program. Yes, ma'am. Ma'am, like you told that if you want to say something, you can say. यस So. यस, आई Yes, विल डू yes, I'll दैट, do आई विल that. टेक अप I'll दैट take टू। up that too. Ma'am, your voice is echoing. हाँ, ये हाँ सी ये पीपल see people डू वन थिंग, you know keep yourself on mute at one time. If more than one person will be unmuted, then this noise will happen occur. So it's better not to be unmute. You just write it here, I'll then permit you, then you can unmute yourself, right? देखो अभी ठीक हो गया आवाज, है ना? So we have to learn these things while attending the class. Fine enough. So for me, only to have done that assignment, that what you wanted to become. Just सोचो कि आप 2 दिन में 3 दिन में आपने 2 लाइन नहीं लिख पाए, वो भी अपने लिए, कि मुझे क्या करना है जीवन में. This is what I can say on the very first day of the year. है ना? लिखना चाहिए था. I don't know. I have written, but I am still searching. Okay. Vimal has done it. Good. How many of you now? So any one of you can share it here. You can speak up. You can unmute and say, I'll keep myself on mute now. कबीर, अबिन जोश, देखो इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, वरना तो मैं ही बोलती रहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. Seema ma'am, can I ask? Yes, Ma'am, my name is Tushar ma'am. yes, बोलो बेटा. मैम जो आप टॉपिक मैम बोली थी मैम, एक बार प्लीज वो कर देंगे मैम, मैं बोलना चाहता हूँ. टॉपिक जो था वो ये था कि बोलना नहीं है उस पे. यस आपको मैम. काम दिया गया था बच्चों को कि आप जो है यस मैम. अपने लाइफ में क्या था, बस ये करना था. तो ओके जो मैम. लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, ओके आज क्लास मैम. में आए हो तो प्लीज डू इट. And I am telling you why I ask you people to write it. Okay, you can keep now yourself on mute. Okay, Tushar, ओके मैम, गिव मी सम मिनट्स, आई एम गोइंग टू रिटर्न. that's great. ओके मैम. So ओके मैम, थैंक यू any मैम. one of, okay beta, Can I share? yes, why not? Who is this? Ma'am Aditi. Hello. बोलो बेटा अदिति. Hello. Hello, Hello. who is this? Punit Vats. Puneet, if you are not speaking anything related to the topic, keep yourself on mute. First and foremost, ma'am, a very happy new year to you. Thank you, And and same to you. hello, Yes, yes. बोलो अदिति, आ रही है आवाज. ma'am. Whatever I do in my life, I just wanted to be happy and compassionate and have a passion towards it. It's just that I've not decided yet that what I have to do, but I want to be a happy person all through my life. That's great. Very good. Yeah. Anybody else? Thank you. Ma'am, can I Okay, speak? beta. Yes, sure. So should I start? Yeah. Okay. So I'm going to dictate what I've written on vision of my life. And so here it is. When we talk about the vision of our life, the first thing that
comes in our. Am I audible? Yes, you're audible. When we talk about the vision of our life, the first thing that comes in our mind is a life full of success, stable income, fulfilling our standards of leisure and needs. Believe Oh it my or God. not, Hmm. believe it or not, but more than half of the population want to lead such a life. Now, I would like to introduce you to my side of vision of a life. It's not really easy to be clear of what you really want to do during your school life. You have to follow a routine, a tight schedule, and it becomes a bit harder to focus on yourself. I personally learned some amazing things about my life after I was left over in this competitive world after completing my 12th standard. School life is the base to where you want to land. It's a protective environment which makes you aware of your each step. And that's where the protective environment term comes from. I can proudly say that I'm still not clear of what I want to opt as a profession, but I have a lot to say when it comes to vision of my life. Before being capable to earn a living, I want to focus on how to be a better person. I want to learn the art of appreciating life at each stage. I want to thank for all the miracles that have happened or will be happening in my life during the time. I want to thank God each day for keeping me, my family, and my loved ones safe and healthy in a situation of a pandemic. I want to be a part of all the small things in this universe that add on to one's happiness. From watching a small kid playing happily in the park to a female dog feeding her children is a kind of blessing I want to be a part of. I want to communicate to people, to exchange thoughts on several topics. I want to be a part of relationships where I can learn to ensure commitment, trust, and love a soul wholeheartedly. Be a part of those conversations with your parents where they tell you about what they used to face in their time. Respect your friends, your parents, your loved ones, and last but not least, respect yourself. You see, tomorrow is not promised. You may come across a stage when you don't know what to do. For that moment, just take a deep breath and remember that you exist. And that's what God has planned for you. So it's all going to be worthy. Follow what you love and do fail, but never back off from giving it a try. I would like to finish up with a quote I wrote few months back, and that is, if dreaming only helped us to be where we want to be, God, we all would have created our own world. Accept this life wholeheartedly, and good things are always coming up your way. Thank you. Hello. Kabir, can you repeat it? The last two lines? Ma'am, from where the quote? Are you there? Yes, yes. From the quote, Last. Yeah, that quote only. I would like to Yes, finish. yes. I would like to finish up with a quote I wrote few months back, and that is, if dreaming only helped us to be where we want to be, God, we all would have created our own world. Accept this life wholeheartedly, and good things are always coming up your way. Thank you. That's great. So we can unmute and clap for him. Kabir, well done. You have spoken a lot. Thank you. Okay. Can I say something? Yes, yes. Yes, go Seema ahead. ma'am, ma'am, हाँ जी can I say बोलो. something? Ma'am Yes, Tushar, yes. Yeah. ma'am, good morning to Seema ma'am, respected principals and teachers. This is Tushar. This is Tushar. I am going to share my views on the topic of vision of my life. See, my vision of life is that to become the topper of my college, so that whenever I stand in front of the mirror, I usually tell to myself that I had done a good thing for my parents as well as for myself also, because main aim of the life is to become a very good person and a very good citizen of my country, as well as I want to achieve my dreams also.
And my passion, I want to become a very professionalized CA, because it is my passion and my dream also, and I want to work on that at any cost. And thanks a lot, ma'am. Good. Am I audible? Yes, ma'am, you are Yes, audible. ma'am, you're Okay, audible. fine. And I also Excellent. want to say something. Yes, so others may keep unmute. Sorry, on mute. Fine. Yes, Yes, Priyanshu, go ahead. yes, ma'am. I want to say that I am one of the many person constantly searching about those goals or dreams that is important in life. I have never always had any set goals, and I just moved on with how things happened at various point in my life. Different things seems important at different time period, but then once the time has passed, what seems important that become insignificant. I have so many dreams and wanted in life. So I just want to say that I am still searching for my dream. That one day, somewhere at some point in life will strike with me. Maybe I will find it under your guidance, or I will just enjoy the journey of finding it. All the thing is that I have to write this journey of life to find the answer and enjoy this journey. Thank you, ma'am. Ma'am, That's great. Thank you. Yes, with next, can I? Shioni. Yes, Yeah, ma'am. yeah. Go ahead. Very good afternoon to ma'am and happy new Good year. afternoon. Happy Uh, New Year to you too. can I start? Yes, yes. Okay, ma'am. So, as we all know that life is full of hurdles, but overcoming such obstacle and moving on is all about life. So, right now I'm studying, and I know it will sound a bit strange that I haven't decided any ultimate goal of my life till yet. But of course, I would definitely like to see myself at a good position, no matter wherever I would be. But I will give my more than 100% to achieve it. And I hope in this 3 years journey of my college, I would definitely be able to achieve it and find my goal. Thank you. Ma'am, can I say something, please? Yes, Vimal. Ma'am, although we all have goals, we have our competitions with fellow mates, but ma'am, still at the end, the essence of friendship is gone due to that competition. Although it is healthy or dirty, it doesn't matter. The essence of friendship is gone somewhere or other is lost. So, ma'am, I think, ma'am, although we have that competition in ourselves or being the topper or whatever, I think the essence of friendship should not be lost. I think in this college where I'm going to start a new journey, where we all are going to start a new journey, maybe the essence of friendship should go on. And Your voice is not coming, uh, Vimal. Are able to listen? Yeah. so the essence of friendship should be continued till the end of the life. So, ma'am, just to make it clear, I've just written a poetry. Can I recite it? So Sure, here it sure, goes. sure. Yes, yes. I stood in the middle Yes, of the yes. crowd Go ahead. in the dilemma of solving confusions. I had no idea what I was doing because no one suggested alternatives. In the world of competition, everyone became eagles. It was not the correct solution, but it led to more confusions. Working hard became a fashion, but everyone became selfish. Even friends started to lie. Alone became my line. The world has become opposite to itself. Well, everyone gasped at this thought. Smiling faces sulked. Well, I want to ask one question. Is that the end of humanity? But some will question back, is that the end of you? Thank you. Great, great. Thanks. Thanks to everyone who spoke here. Thank you, ma'am. So, last call. Anybody else? Can I speak, ma'am? Sure. Who is this? Abin. Ma'am, Okay. I'm Abin Jose. Yeah. So, ma'am, I answered your question that was, where do you see yourself in the coming 10 years? And Mm-hmm. what is your vision at the age of 60? Yes. So, ma'am, I want to see myself as the owner of my own business firm, or at least as an entrepreneur at his beginning phase. I want to strive to the best of my abilities to attain this dream of mine. No matter how difficult the path be,
All I need to ensure myself is that I have enough of possessions, be it in money or object, in the end of the struggle, to lead a life that I always dreamed of. That's all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Abin. So, one virtual clap to all of you who participated, who were listening here. So, thank you so much for your participation, everyone. And I would Ma'am, like Shiva, to, ma'am, can I ask something? Ma'am, actually, I yes, haven't attended your class, ma'am, yesterday. So, ma'am, please send me the recordings, ma'am, please. okay, that will be done. Nothing to Okay, worry. ma'am. It will be Okay, done for ma'am. all the classes. You be Okay, ma'am. relaxed. Thank you, ma'am. Okay. So, मेरी क्लास का तो टाइम जो है ना ऐसे ही निकल जाएगा एक्चुअली, बट कुछ चीजें जो एसेंस था ना, जो मेरा एसेंस था कहने का, वो थोड़ा सा एबिन ने किया और आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से बोला है. आई टोटली अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू ऑल पुट. एसेंस ने बहुत अच्छा पोएम जो है रिसाइट करा है और कबीर ने बहुत अच्छा सुनाया अपना पूरा स्टोरी जो है कि किस तरह से लाइफ आगे बढ़ रही है और क्या हुआ. So that's great to hear from you all. मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी. एबिन, जैसे कि आपने अभी मैं कंफ्यूज ना हूँ, एबिन ने सुनाया था ना अभी हाँ, yes, ma'am. यस Abin Jose. यस. तो इसमें ये क्या है, आप ना, मैं एक चीज आप सबके लिए है, थोड़ा सा जो है, मैं आप एबिन जिस तरह से आपने कहा, बहुत सही कहा है आपने, गलत नहीं कहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत, जो है आपकी जो फीलिंग है वो गलत है, मैं नहीं कह रही. ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे. पर होता क्या है, एक स्टोरी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी कि आप जिस तरह से देखते हो ना वही दिखता है एक्चुअली. आप जब दूसरे के साइड जाते हो तो कुछ और दिखता है, अपने साइड आते हो तो कुछ और दिखता है. राइट. मैं दिखाऊंगी कभी कभी कुछ कुछ. एक्चुअली मैं आप लोग को एमपीओबी नहीं पढ़ा रही, वरना ओबी में परसेप्शन आता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती है. तो कुछ कोई बात नहीं है. आई विल टेक द बिजनेस कम्युनिकेशन, आई विल टेक सम क्लासेस फ्रॉम, आई मीन टेक सम लर्निंग फ्रॉम देयर आल्सो. I'll tell you how to see the life. देखो होता क्या है ना लाइफ में कि एक स्टोरी है छोटी सी. ये है कि एक जैसे अपना दिल्ली एनसीआर का है ना, बॉर्डर है, पता है बॉर्डर है. तो अभी जो किसान का हड़ताल चल रहा है, स्ट्राइक किए हुए बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, स्ट्राइक किया उनका, धरने पे बैठे हैं, तो आप आ जा नहीं सकते, इतनी सारी इनकन्वीनियंस हो रही है यहाँ पे. तो आपको, आप सभी न्यूज देख रहे होंगे तो पता होगा, एटलीस्ट जो दिल्ली एनसीआर में नहीं है उन्हें भी पता होगा. प्लीज आप लोग अपने बाकी लोग जो है म्यूट करके रखिए, क्योंकि नॉइज आएगी फिर वो रिकॉर्डिंग में भी यही सारी नॉइजेस आएंगी, है ना. इज बेटर तुषार. यस, थैंक यू. तो मैं यहाँ पे स्टोरी क्या है कि एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के पास एक ओल्ड लेडी होती है जो अपना कुछ सामान सेल आउट कर रही होती है. ठीक है. तो वहाँ पे एक पर्सन आता है, वहां से क्रॉस कर रहा होता है, तो कहता है कि उसके वहां शहर है वो कैसा है. तो उसने पूछा कि, लेडी ने पूछा कि तुम जहां से आए हो, आ रहे हो, वो जगह कैसा था. तो उसने कहा कि अरे वहां तो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, सबको हेल्प करते थे, मतलब जितनी तारीफें कर सकता था उसने किया कि वहां पे हमारे साथ बहुत अच्छा होता था. तो उस लेडी ने कहा कि अच्छा ऐसा था. तो ये सेड हाँ. तो उसने कहा हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग मिलेंगे तुम्हें. ठीक है, गॉट द पॉइंट. सेकेंड पर्सन केम, ही अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि माँ ये शहर कैसा है, कैसे लोग हैं यहाँ के. तो उसने पूछा कि सेम क्वेश्चन कि आप जहाँ से आए हो वहाँ कैसे हैं. तो उसने बताया, सेकेंड पर्सन ने, कि वहाँ पे तो बहुत ही खराब लोग हैं, कोई किसी को कोऑपरेट नहीं करता, लड़ते झगड़ते हैं, कभी भी किसी को हेल्प नहीं करते हैं, दिस एंड दैट, वट एवर निगेटिव थिंग्स ही कुड स्पीक अप, ही सेड दैट. तो उस लेडी ने कहा कि यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे. तो एक किनारे, एक कॉर्नर पे एक बैठा हुआ था दूसरा पर्सन, उसने उस लेडी से आके पूछा कि भाई एक बात बताओ, शहर तो सेम है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर तो सेम है, हर किसी के लिए सेम है, सीमा सिंह के लिए भी सेम है, आप सबके लिए सेम है, पर ये सेम सिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग कैसे बिहेव कर रही है. तो उस लेडी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप जैसे हो वैसा ही दिखता है. वो जो पहला पर्सन आया वो खुद इतना हेल्पफुल होगा कि वो उसके लिए सबको ही खड़ा होता होगा कि हाँ जी हम चलो इसको हेल्प करते हैं, तो इट्स ओके, उसके लिए सारे ऐसे थे. और जो दूसरा पर्सन है खुद इस तरीके का है, तो इसको सारे लोग ऐसे ही दिखते हैं. तो इसको निगेटिव नहीं लेना है. अगर आप सोचो कि मैम मुझे पिन पॉइंट करें, ऐसा नहीं है.
मे बी वो आपका जस्ट पोएम हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ क्रक्स ये है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और कंपटीशन तो होगा, पर पता है आज के टाइम पे ना जो एक स्टोरी सुना था, आपने बचपन में सुना होगा, मे बी उसका फर्दर वर्जन आपको नहीं पता होगा। कछुए और खरगोश की एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें कि कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है ना। ये हमने सीखा है बचपन से, हम लोग जानते हैं। तो जो कछुए और खरगोश वाली कहानी है, तो उसमें क्या होता है कि जो तेज है, जो स्लो है और काम करता रहेगा वो जीत जाएगा, यही होता है, जो कछुआ जीत जाता है। पर क्या कछुआ का जीतना जीत है? नहीं। यस और नो, बताइए जरा क्वेश्चन, हाँ या नहीं। चैट में लिख सकते हो, प्लीज राइट इन द चैट, अनम्यूट मत करो, राइट इन द चैट। कछुए का जीतना जीत है या खरगोश का हारना हार है? क्या है बताइए आपके हिसाब से, मैम। प्लीज यस एंड नो। मैम अभी इस पे नहीं आना प्लीज तुषार, ओके राइट ओके इन द मैम। चैट। यस, क्या यस नो में नहीं समझ आया? मतलब कछुए का जीतना जीत है, दैट यू आर सेइंग यस, या खरगोश का हारना हार है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, राइट। जीतना जीत है तो नहीं है सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आज के टाइम पे जो हम कंपटीशन की बात करते हैं, उस कंपटीशन के टाइम पे जो है कछुए का जीतना जीत नहीं है, और खरगोश का हारना ही एक्चुअली हार है। कछुए की भी हार है, उस हार में कछुए की भी हार है। बोलोगे कैसे? मैं बताती हूँ। इसी इसी कहानी का जो नेक्स्ट वर्जन है, उस नेक्स्ट वर्जन में वो बात करता है जहाँ पे कंपटीशन को मिनिमाइज किया जाता है। पता है क्या आता है नेक्स्ट वर्जन? आप लोगों ने पता नहीं, आपने सुना है? इसके आगे की कहानी पता है किसी को भी? अगर किसी को पता है तो मैं उससे सुनना चाहूंगी। नो, जो भी कह रहा है मुकुल कि खरगोश की हार हार है, नहीं, वो कछुए की भी हार है, और अगर वो उसकी जीत थी तो उसकी भी जीत है। किसी को भी पता है इसके आगे का वर्जन? सुनना है, यस और नो? आगे का वर्जन सुनना है यार? दोनों दोस्त बन के बाद में नहीं, स्टोरी सुननी है आगे की, अगर पता नहीं है तो यस, दैट्स ग्रेट। ओके फाइन, सो लिसन टू इट, देयर आर 3 वर्जन्स मोर इन दैट स्टोरी। नेक्स्ट टाइम कछुए को खरगोश को लगता है कि यार ये तो मैं हार गया, मैं तो इतना तेज फुर्तीला, ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ, है ना। तो वो कहता है कि चलो दोस्त एक और रेस हो जाए, ठीक है, एक और रेस हो जाए। पहला मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? स्लो एंड स्टडी विन द रेस, राइट। सेकंड सुनना क्या होता है? तो कछुआ कहता है हाँ, वो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस मैं तो जीत गया था, मैं जीत ही जाऊंगा, तो चलो एक और रेस हो जाता है, कोई बात नहीं। तो जाते हैं कछुआ और खरगोश, दोनों की रेस लगती है, दोबारा से वही टारगेट सेट होता है, सब कुछ होता है। रेस जो है शुरू होता है, तब क्या होता है कि अगेन कछुआ अपने चाल से चल रहा होता है और खरगोश अपने चाल से। खरगोश ने अपने मन में एकदम डिटरमिन होता है कि इस बार मुझे सोना नहीं है। क्यों हार गया था वो? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था और सो गया था, है ना, कि मेरे पास तो मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा काइंड ऑफ। तो इस बार वो था कि नहीं, मैंने जो गलती पास्ट में की थी तो वो मुझे रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ से एक और लेसन सीखना है मुझे कि अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, राइट। और दूसरा कि मिस्टेक को रिपीट नहीं करना, तो मिस्टेक वाज वन मेजर मिस्टेक, दैट वाज यू स्लिप, राइट। तो हमें नहीं सोना है। तो उसने कहा चलो, फिर क्या हुआ इस बार? कौन जीता? ऑब्वियसली खरगोश, राइट। कछुआ हार जाता है, वो नहीं पहुंच पाता है टारगेट तक। तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि हमें अपने गोल पे फोकस करना है, जब तक कि हम पूरा नहीं होगा तो जो है हमें आराम से नहीं बैठना है। हमारा गोल अचीव होगा उसके बाद ही रेस्ट करना है, राइट। वंस यू हैव सेट योर गोल, यू हैव टू फॉलो इट until and unless you are getting it। वो कहते हैं ना, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो सो मत जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो सिमिलरली you don't have to sleep before that। डोंट स्लीप मीन्स 4-5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रात की नींद नहीं सोएंगे, वो नहीं। आपने जो गोल फिक्स किया उसके ऊपर फोकस करना है और काम करना है। फाइन, ये सेकेंड स्टोरी है उसका, वर्जन 2। थर्ड वर्जन में आता है कि कछुआ फिर से सोचता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं हार गया, अब क्या करें। तो कछुआ कहता है कि ऐसा है कि एक थर्ड रेस करते हैं, और इस बार जो मैं जैसा टारगेट कहूंगा, जहां पे जो मैं कहूंगा उसके हिसाब से होगा। अब उसने कहा खरगोश ने कि चलो जी बहुत बढ़िया है, हम तो करेंगे। अब खरगोश ने तो सीख लिया था मुझे सोना नहीं है एंड आई विल विन, है ना। जनरली हम लोग यही करते हैं
कि सोना नहीं है और हम जीत जाएंगे। तो खरगोश कहता है एकदम ओवर कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बताता है अब जो रेस शुरू होता है तो होता है क्या, थोड़े टाइम के बाद पानी आ जाता है ना। टर्टल ने अपना क्या किया था कि उसने बीच में रिवर वाला प्लेस रखा था और उसके बाद फिर से टारगेट था, तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए दैट दे हैड टू क्रॉस दैट रिवर। तो जैसे ही पानी देखता है तो खरगोश तो बैठ जाता है कि अब तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो टर्टल अपना उतरता है, पानी में चला जाता है, स्विम करके दूसरे पार चला जाता है, फिर से खरगोश कछुआ जीत जाता है और वो हार जाता है। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, वैसे मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए पर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं खुद ही बता देती हूँ। यहाँ पे हमें ये सीखना है इस स्टोरी से कि आप बेस्ट कर सकते हो जब आप अपने स्ट्रेंथ के साथ काम करते हो, राइट। स्ट्रेंथ मीन्स कि स्विमिंग वाज द स्ट्रेंथ ऑफ टर्टल, तो दैट टर्टल कुड स्विम वेल एंड दैट वन द रेस, फाइन। अब फिर से खरगोश को लगता है कि यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है, कोई ऐसा गेम नहीं हो सकता है, ऐसा रेस नहीं हो सकता है जहां हम दोनों जीते, है ना, जहाँ पे दोनों की जीत हो, किसी की हार ना हो। तो वी हैव टू एबिन, वी हैव टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर, दैट एनवायरमेंट वेयर एवरीवन विंस, राइट। तो कछुआ खरगोश बैठता है, आपस में बातें करता है, कहता है कुछ होना चाहिए जहाँ पे हम दोनों जीते, ऐसे नहीं, और टाइम से पहले जीते, है ना। तो दोनों तैयार हो जाते हैं। किसको हार पसंद है, किसी को नहीं, कछुए को भी नहीं हार पसंद थी और ना ही खरगोश को, तभी तो दोनों बार बार गेम को आगे बढ़ा रहे थे। तो खरगोश ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, जो सरफेस वाला प्लेस होगा वहां मैं तुम्हें अपने ऊपर लूंगा, ठीक है, मेरे पीठ पे तुम बैठना और मैं दौड़ के जाऊंगा वहां तक, जहां से पानी का होगा तो तुम मेरे ऊपर आना और फिर हम रिवर को क्रॉस करेंगे। तो कछुआ तैयार हो गया और इस तरह से दोनों टारगेट पे एक साथ पहुंचते हैं और दोनों की जीत होती है, ठीक है। तो हमें ये एनवायरनमेंट सीखना है, हमें वो एटमोस्फेयर क्रिएट करना है, राइट। कंपटीशन का जमाना नहीं है, वी हैव टू वर्क ऑन कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। अब इसमें क्या चीजें हैं, स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग है, तो मेक अ टीम, मेक अ टीम, और टीम में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनो। देखो कंपटीशन एग्जाम पास करने वाला है, लेकिन जब आप एक बार जॉब ज्वाइन कर लेते हो तो कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा ये डिपेंड करता है आप वहां पे टीम कैसे बनाते हो। टीम में क्रिकेट टीम होता है ना, वो टीम, क्रिकेट टीम में क्या होता है, सारे क्रिकेटर वो बैट्समैन होते हैं क्या, नहीं, सम ऑफ देम आर 5-6 आर बॉलर्स ऑल्सो। तो सिमिलरली जब आप वर्क प्लेस पे, मैं यहाँ DSP में काम कर रही हूँ, तो मैं अकेले कितना भी कर लूंगी, आई कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, राइट। और कुछ चीजें मुझे पता है कि मैं करूंगी तो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, मुझे पता है कि नेक्स्ट पर्सन है उसके पास ये चीजें बेस्ट है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क इन अ टीम so that we both can win and overall organization can do better, right? I hope कि आप लोग हर कोई, मैं किसी किसी नाम को रिपीट कर देती हूँ, इसका मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं किसी को पिन पॉइंट करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि हर बच्चा मेरे साथ, अगर आपको लगता है, अगर इसमें भी किसी को लगता है कि मुझे ये चीज नहीं करना, तो यू कैन ड्रॉप इट। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं मुझे इन पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ना है, यू गो अहेड। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप इन चीजों को लेके काम करो। आप अपना, जैसे कि कितना अच्छा पोएम उसने रिसाइट किया, किसी ने कितना अच्छा बोला, किसी की कुछ और काबिलियत है ना, कोई इसमें से सिंगिंग भी करता होगा, कोई कुछ कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू मेक अ टीम एंड वर्क लाइक दैट, कि सब लोग वहां पे, जैसे कि कोई म्यूजिक का कोई ऑर्केस्ट्रा कोई प्रोग्राम होता है, कंसर्ट होता है, तो क्या वो सिंगर की केवल वैल्यू होती है, वो हमें दिखता है, हम परसीव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हर किसी की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जैसे कि ऑफिस है, तो ऑफिस में क्या स्वीपर की वैल्यू नहीं है, यस उसकी भी उतनी वैल्यू है। मेरे रूम की, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे ऑफिस की सफाई नहीं होती है ना, मैं सुबह 8:30 आ जाऊँ, चाहे 8:40 आ जाऊँ, चाहे जितने बजे आ जाऊँ, और चाहे मैं आके मुझे 1 घंटा बाहर खड़े रहना पड़े, मैं रूम में तब तक नहीं बैठती, इस चेयर पे तब तक नहीं बैठती जब तक मेरे रूम की क्लीनिंग ना हो जाए। और अगर मैं कुछ अर्जेंट होता है, मैं आके बैठ जाती हूँ, मैं उठती नहीं हूँ कि अब अगले दिन सफाई करना, मुझे काम करते हैं, मैं नहीं अपना टाइम खराब कर सकती। टाइम खराब नहीं कर सकती, दूसरी जगह मैं 1 घंटे खड़ी भी रहती हूँ, क्यों, क्योंकि जब तक सफाई नहीं करूंगी मैं नहीं बैठूंगी। तो क्या इसका क्या मतलब है कि सफाई नहीं होगी तो मेरा वो नहीं आएगा ना, टेम्परामेंट नहीं आएगा काम करने का। तो मुझे क्लीनिंग चाहिए, पॉजिटिविटी आती है उससे, है ना, इसीलिए साफ सफाई करते हैं हम लोग। फाइन एनफ, बहुत ज्यादा हमने ज्ञान सीख लिया है, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं और इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो आप लोगों को मैंने विजन जो कहा था ना लिखने के लिए कि लाइफ में बनना क्या चाहते हो, उसके पीछे एक रीजन था, ट्रस्ट मी। इसमें भी 5 मिनट शायद लग सकता है।
मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो चीज आप कहीं पे लिख के रख देते हो ना, दैट थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा कि मुझे कोई आप में से आईएएस बनना चाहता है, मान लो, तो आपने अगर लिख के रखा ना कि मैं आज से 5 साल 7 साल बाद में आईएएस बनना चाहती हूँ, मेरा ये पॉइंट था। बाय द वे, आप लोगों ने काफी कुछ इधर उधर बोला सबने, इट्स ओके दैट यू स्पोक एटलीस्ट, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप अपने लाइफ में किस पोजीशन पे जाना चाहते हो, उस चीज को लिखो। तो वो जैसे लिखोगे ना, आपकी बॉडी एनर्जी ऑटोमेटिकली उसके लिए काम करने लगती है। और मैं इसकी जीती जागती तस्वीर हूँ। तस्वीर इन द सेंस आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ इट। मैंने लास्ट ईयर 1 जनवरी को एक लिखा था, वीडियो बनाया था, यूट्यूब वीडियो, मेरा डॉक्टर सीमा कुमारी करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उस पर मैंने एक डाला था लास्ट ईयर 1 जन को। उसमें मैंने जितनी बातें बोली थी, स्टोरी सुनाया था क्या, और मैंने कहा था कि आप अपना कुछ करो एंड वट एवर इट वॉज। मैंने उस दिन कुछ कुछ लिखा था कि मुझे ये करना है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीजें बियॉन्ड कंट्रोल होता है, वो हुआ है, लेकिन मेरे जो टारगेट्स थे ना, उससे मैंने ज्यादा अचीव किया है। ठीक है, तो जब आप लिख देते हो तो वो अपने आप होता है, आपको उसके लिए कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई ma'am. ऑडिबल? यस, ओके। Yes, बीच बीच ma'am. में ना ये फोन से कनेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉल आता है तो समझ में नहीं आता, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। एनीवे, कम टू द पॉइंट। तो आप जब कुछ लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास पहले, आजकल तो मैं एक ही मोबाइल कैरी कर रही हूँ, पीछे मेरे पास 2-3 मोबाइल्स होते थे। कॉलेज का भी मोबाइल होता था, पुराना वाला जो नोकिया का, एक 1200-1100 रुपए का मिलता था। वो ऑफिशियली मुझे मिला हुआ था कॉलेज से, कॉलिंग के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कई बार टीम में बच्चे काम करते हैं तो मुझे उनको देना होता था, तो इसलिए वो 1-2 नंबर मेरे पास एक्स्ट्रा होता था। तो उन फोन्स में मेरी आदत है, मैं मुझे कभी आप खाली बैठे नहीं देखोगे कभी भी। मैं अगर जगी हूँ या तो मैं काम कर रही होती हूँ सीरियस वाला जो ऑफिस का होता है, या घर में हूँ तो घर का कर रही हूँ। जब मैं खाली हूँ ना, तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है मैं लिख रही होती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे बैठी हुई थी, मुझे लगता है ये बात होगी 2009-10 की बात होगी। मैंने उस मोबाइल के ड्राफ्ट जो होता है ना, जनरली इसमें आजकल नोटबुक आता है, उसमें एक ड्राफ्ट का होता था कि आप मैसेज को टाइप करके छोड़ दो, किसी को सेंड नहीं करते तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता था। तो मैंने उसमें लिख रखा था कि मुझे 2015 के एंड तक पीएचडी करना है, मुझे 2013 के एंड तक अपना नेट निकालना है, मुझे 2012 में 12 में लिखा था मैंने कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, और सब कुछ लिख के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं आई वॉज डूइंग नथिंग, दो इट हैज बीन सेड कि आप उसको अगर सामने रखते हो तो और ज्यादा जल्दी होता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने ऐसे ही खाली टाइम में बैठ के लिख के छोड़ दी थी। अच्छा, जब हम अपने नए घर में शिफ्ट किए तो जितना पुराना सामान होता ही है कि हटा दो, तो हस्बैंड ने बोला कि आप अपने ऑफिस का फोन रखे हो, साल भर से घर में पड़ा है, यूज भी नहीं करते, इट्स बेटर कि आप वहां रिटर्न कर, तो कभी मांगेंगे तो देना पड़ेगा, तो ये सेट कि रिटर्न कर दो। तो मेरी आदत है कि मैं चाहे लाइब्रेरी पे कुछ हम सेव कर सकते हैं, मोबाइल तो मैं डिलीट करना भूल गई हूँ या मैंने सेव नहीं किया, तो चलो उसको मैं ले लूँ। जब मैं ड्राफ्ट में गई तो मुझे 3-4-5 मैसेज के बाद वो वाला निकला जिस दिन मैंने उसको लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, देखो ये मोबाइल। तो कह रही है क्या है, मैंने कहा मोबाइल तो मतलब आई मीन टेक्स्ट देखो क्या लिखा है। तो ये सर अच्छा ये है ये। तो उस समय 2012 की बात बता रही हूँ, 2012 की जनवरी की 27 जन को हमने अपने घर में गृह प्रवेश किया था। तो मैंने उनको दिखाया कि देखो ये क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा क्या लिखा है, मैंने कहा देखो लिखा है 2012 में मुझे गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, देखो दोनों हो गया हमारे पास। तो कह रहे तुम तो ऐसे ही बात करती हो। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी मुझे घर लेना है, कोई प्लानिंग नहीं थी मुझे गाड़ी लेनी है। ऑल ऑफ सडन हम उठ के गए हैं, डीडी मोटर्स वजीरपुर डिपो के पास है, वहां गए हैं और हमने गाड़ी उठा के लेके आ गए हैं। ऑल ऑफ सडन हम गाड़ी में एक दिन जा रहे थे तो हमने कहा यार घर देखते चलते हैं, और देखे, और यू कांट बिलीव इट कि उस टाइम मेरे पास मेरे पर्स में हार्डली 1000 रुपीज था। और मैंने जो जो घर पसंद आ गया तो उसने मुझे कहा कि मैम कुछ तो देके जाओ, नहीं तो मैं सुबह, मैंने कहा मेरे पास 11,000 रुपये देके जाओ कम से कम, टोकन मनी, कल बाकी 5 लाख दे देना, फिर बाकी चीजें प्रोसेस में चला जाएगा। हमने कहा भैया मेरे पास ले दे के 1,000 रुपए है, और गाड़ी हमने जनवरी में ली थी, मई की बात बता रही हूँ 2012 की, जिसमें हमने वो लिया था, घर लिया। तो हमने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं, अकाउंट बिल्कुल जीरो पे चल रहा था, कोई भी पैसा नहीं था उसके अंदर। हमने कहा मेरे पास ले दे के पर्स में 1,000 रुपए है, मैं कल सुबह तक मैनेज करके 11,000 भी लाऊंगी, अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो घर हमने ले लिया।
तो द पॉइंट इज कि दैट हैज हैपेंड, और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में घर खरीदना, गाड़ी लेके खुद का विदाउट लोन और एनीथिंग आप अगर ले रहे हो तो बड़ी चीज है, बड़ी अचीवमेंट है, छोटी अचीवमेंट नहीं है अपने आप में। एंड दैट हैज हैपेंड। ये तो चलो कहोगे कि मेटेरियलिस्टिक थिंग है, अपने आप भी पैसे है तो हो जाता है। देन जो है मैंने मेरा नेट 2013 में इतना टफ पेपर आया था जो कि कभी नहीं आया था, और मैंने हस्बैंड को बोला मेरा निकल रहा है, मेरा 62% बन रहा है, कट ऑफ 60 से नीचे नहीं जाएगा, 60 से ऊपर नहीं आएगा, मेरा 62% बन रहा है और मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, ठीक है। वो कह रहे तुम पढ़ लो, हर बार यही बहाना करती हो। मैंने कहा मेरा निकल रहा है, मुझे पता है, मैं नहीं पढ़ने वाली। अगले नेट की मैं नहीं तैयारी करी, साल में 2 बार होता है उसका टेस्ट। मैंने कहा मैं अगली तैयारी नहीं कर रही हूँ जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस दिन रिजल्ट आया है मेरा रोल नंबर था उसमें, तो मैंने टारगेट रखा था 2013 क्वालिफाई करना है, और जून में मैंने पढ़ा है, मैंने टाइम दिया है, ऐसे हवा में नहीं आया है। मैंने 6 महीने 2-2 घंटे पढ़ाई की हूँ, और 10 दिन की छुट्टी लेकर लगातार पढ़ी हूँ मैं, और विदाउट एनी ब्रेक, मतलब 3-4 घंटे मैं सोती होंगी हार्डली, उसके अलावा मैं पढ़ाई कर रही थी, पूरे टाइम पढ़ाई, पूरे बेड मेरा जो है, स्टडी टेबल पे मेरी पढ़ने की आदत नहीं, मैं ज्यादातर बेड पे रख के पढ़ती हूँ, जो स्टडी टेबल छोटा वाला होता है उसको उठा के मैं रख के पढ़ती हूँ, तो मैं उस पे सारे पे बुक्स पढ़ी रहती थी। अब पूरे एमबीए की जितनी किताबें होती है, जितना सिलेबस होता है, सारे मैंने 10 दिन में तैयार किए थे। यू कैन इमेजिन कि उस लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी मैंने सक्सेस पाई, क्योंकि मैंने शायद मुझे लिख दिया था, पर उस लिखने का नहीं होता है। वंस यू राइट समथिंग ना, योर बॉडी एनर्जी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देन पीएचडी भी मेरा 2015 में हो गया था टाइमली। खैर पीएचडी को मैं बहुत ज्यादा नहीं वेटेज देती, क्योंकि मेरे से ज्यादा हमारे चेयरमैन सर पीछे पड़े होते थे, सिवा पीएचडी कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। हमारे गाइड जो होते हैं पीएचडी में, वो परेशान करते थे कि कितना टाइम लगाएगी, कितना टाइम। तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ, जो मेरा टाइम बाउंड मैंने रखा था, उस टाइम बाउंड के अंदर हर कुछ हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू कि भगवान का आशीर्वाद है कि मैं किसी को कुछ कह भी दूं तो उसका कल्याण हो जाता है। आई मीन अच्छा ही बोलती हूँ, गलत मैं कभी नहीं बोलती। और मैं अपने लिए मैं सोच भी लेती हूँ ना कि मुझे ये करना है, तो हो जाता है। तो दैट इज द ब्लेसिंग्स आई हैव ऑफ द ऑलमाइटी, ये है। और आगे थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जरूर लिखना, मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि क्यों लिखना जरूरी है। दिस इज वाई आई टोल्ड यू। आज भी जो लोग अभी क्लास ऑलमोस्ट 78 लोग हैं, 2 लॉगिन तो मेरे ही हैं, 78 पीपल आर देयर। आप प्लीज लिखो कि क्या बनना चाहते हो लाइफ में, एंड आई एम टेलिंग यू दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है, लिख के छोड़ दे। आई मीन योर बॉडी एनर्जी वुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। फाइन, लेट्स जस्ट स्टार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एज वेल। कुछ तो पढ़ ले हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है, कुछ बता सकते हो आप लोग कोई? थैंक यू सो मच। आप लोग Speaking in it. Ma'am, communication is a way of sending Okay. one अच्छा, means, ये मेरा ma'am. दिखाई दे रहा है, पीपीटी शो हो रहा है? No, ma'am, no. मैम हो रहा है। मैम हो रहा है। हेलो मैम मुझे नहीं दिख रहा मैम। हो रहा है, हो रहा है मैम, शो हो रहा है। हाँ, तो आप एक काम Ma'am, करो, the way of जो लोग expressing Zoom पे yourself. लॉगिन होगा। ओके मैम। मैम कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैम सामने वाले की बात समझना और मैम अपनी बात समझाना। क्या? एक Ma'am, सेकंड, the एक way बार of फिर ठीक conveying. बोलो। मैम सामने वाले की मैम बात समझना और मैम अपनी बात समझाना। गुड, यस, Ma'am, the way of conveying your thoughts to others. ओके। Ma'am, the way of contacting and information to others. वे Shall ऑफ, I? Conveying the information to others. ओके, Communication is the act of giving, receiving, and sharing information to others. दैट्स ग्रेट। तो यानी हम सबको पता है। अब प्लीज अदर्स कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। फाइन। So what we can say here, if we will go through the syllabus and bookish, things, you all have said very well. So it is a process of what? Exchanging. Exchanging what? Exchanging information. Something I have, like I had this story, I told you, I extended that information to you people. Ideas, if I know something, I can say that. Then thoughts, something is there in my mind, I can tell you. Some feelings, like we all are happy today, so we are saying that what? Happy New Year, this and that. Okay. So feelings we can share. Then emotions. Emotions also we can exchange. Exchange means कि अगर आप smile करते हो तो अगला क्या करेगा? सामने से smiling pass करता है, right? So we can share these things
और भी ज्यादा, मिनिमम इतनी सारी चीजें, थ्रू what we have to do, how we can share, how we can exchange, through speech. Either you can speak up and share. Then signals are like, if you are saying anything, like we just show our fingers like this, what is this? Victory, right? तो आप बिना कुछ बोले भी दिखाते हो कि हाँ आप बोल रहे हो, है ना, एक्सचेंज कर रहे हो, something you are exchanging with the other person. Writing, we are writing something and we are exchanging the information. Behavior, through behavior also we are exchanging the information. How? I will tell you. Come to the points like meaning of communication. So basically थोड़ा सा बुकिश होना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम्स में लिखने भी हैं. So communication word, it has been derived from the communis. Communis is what? That is a meaning is communicare. Meaning is share, to impart, to participate in something, to exchange, transmit, or to make something common. Common means what? पीपीटी नहीं आ रहा है तो प्लीज आप ना, मेरे दो नेम्स दिख रहे होंगे सीमा करके, आप एक पे ना दिखा रहा होगा, प्रेजेंटेशन लिखा होगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट. बहुत लोगों ने लिखा है पीपीटी नहीं दिख रहा है, तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल. प्लीज check, there are two logins from my name, Seema Singh. So you have to click on the second one where it is showing presentation. अब दिख रहा है सबको? Yes, please. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine enough. Thank you. So that is the communication. Making the things common. Common means everyone knows that. So it is available for everyone. In general, communication refers to the process of sharing. Again, the same thing from the previous slide, it is said there. Sharing information, ideas, thoughts between individual. Like whatever things we shared, that is available to everyone. It is the process of imparting or exchanging of information, ideas, facts, opinions, beliefs, feelings through verbal or non-verbal means between two people or within a group of people, usually with the intent to motivate or influence behavior. Like whatever things, belief means I have the belief that once you write something, that is going to happen, right? That is my belief. So what I did, I shared with you people to either you, I can say that to motivate you, you should also write your goals of your life, or to influence your behavior. Influence your behavior means if you have written down anything, that means I am successful in influencing you or your behavior, right? So through communication, like see, Modi ji is giving this speech, and what happens? People are listening to it, and what they do later on, wherever. So that is the influence behavior. आप उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है? तो आपको उन्होंने क्या किया, स्पीच दिया तो मोटिवेट हुए, मोटिवेट होने के बाद क्या काम किया कि जो वो जैसा कह रहे हैं वैसे कर रहे हो, तो दैट इज योर चेंज्ड बिहेवियर. You are going to be changed and you are acting accordingly, right? The means of transferring the information from the sender to the receiver. What I am doing right now, whatever knowledge I have about the life or the communication, I am going to transfer it to you people, right? And to make you understand in the right context. So that is the communication. How this class is going to take place? With the help of the communication only. So this is the meaning of communication. Then definitions of the communication. See, in the examination, what happens that sometimes it is written that you have to define the term. So when it is defined the term, you have to write some quote, definitions of some scholars, right? So according to Webster's dictionary, what they have said that communication is something, some exchange of the information where what is happening here between individuals through a common system. Common system means what? If I am teaching you, so on the same platform, common platform, you are also there to listen, right? So it is the common system.
common system, right? Then symbols and signs of behavior. नाम आ रहे हैं इसमें ना, आपका कौन सा वाला है? क्या? सीमा सिंह के नाम से बेटा। 3 आ रहे हैं सीमा सिंह के। एक तो आप जिससे बोल रहे हो, एक आप जिससे प्रेजेंट कर रहे हो मैम, तीसरा हाँ, वाला। तो जब प्रेजेंटेशन वाला, जिसपे प्रेजेंटेशन लिखा है उस पर क्लिक करना है। मैम 3 आ रहे हैं। हाँ 3 आ रहे हैं ना, तो 3 में ना एक पे प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा होगा। ठीक है मैम। उस वाले को टच करोगे तो स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। ठीक है, फाइन एनफ। सो where I was, like common system, common platform, right? And symbols and signs of behavior. Symbols here we mean by that what language I am using, either Hindi or English, right? So what is happening, we all are able to understand the same way. Whatever I am saying is not like, अगर मैं अभी यहाँ पे जापानीज बोलने लगूं तो आई होप कि किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता बाय द वे, तो कोई नहीं समझेगा, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाएंगे। कुछ आप कोई और लैंग्वेज बोलो, मैं नहीं समझ पाऊंगी। So what we have to do, we have to use the common symbols, common signs, so that we both can understand well, right? One definition has been given by Kuntz and Verich. What they have said, communication is the transfer of information from a sender to a receiver. We know from the meaning that basically communication is what sender is sending some message and to whom, to the receiver. बहुत ही बेसिक है, पर आपको यहाँ पे समझना होगा थोड़ा सा। According to Terry and Franklin, they have said it is the art of communication is the art of developing and attaining understanding between people. You have to develop. जैसे अभी जैसे आप लोग वहाँ पे you people are there, but where you are listening or not, that is the matter. Where you are hearing or listening, there is a difference between the two. We will understand it later. So we have to develop such skills. ठीक है? Speaking is one, writing is another, listening is another, right? So we have to develop such kind of attributes where we can understand it well. Fine. It is the process of exchanging information and feelings, as we have said, between 2 or more people, and it is essential for effective management. Why communication is important? Because we have to manage the organization. अगर मान लो कि टॉप मैनेजमेंट चेयरमैन साहब ने उस दिन भाषण में 2-3 बातें कही, अगर वो कम्युनिकेशन में मुझे क्लियर ना हो तो मैं उस पर काम नहीं करूंगी। उन्होंने बेसिकली आप लोगों के लिए बोला था, तो उन्होंने जो कहा वो अगर आप नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा? तो चेयरमैन सर ये तुम्हारे लिए लेक्चर था, ठीक है, अगर ऑफिस में मीटिंग होती है, उन्होंने जो बातें कही उनके स्पिरिट को मैं उनके तरीके से नहीं समझूंगी तो मैं उस काम को कैसे करूंगी? कर ही नहीं सकती। देखो जो परसेप्शन की कहानी बताई ना, टॉप मैनेजमेंट क्या सोचता है वो लोअर मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, है ना, तभी वो काम करेगा ना। लोअर मैनेजमेंट इज द मेजर पीपल हु आर वर्किंग, हु आर फंक्शनल। टॉप मैनेजमेंट तो कह दिया कि ये काम करो, मिडिल वाला कह देता है हाँ जी काम ऐसे करो, पर एक्चुअली में काम कर कौन रहा है? लोअर मैनेजमेंट कर रहा है। लोअर मैनेजमेंट को समझाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर टॉप मैनेजमेंट ने जो कहा, मिडिल मैनेजमेंट ने नहीं समझा तो आगे क्या समझाएगा वो? तो इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में। Some more definitions are given. It is a two-way process. Two-way, why two-way? There must be one sender and one receiver. अगर आप कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि क्लास में, अभी तो वर्चुअल क्लास में वैसे ही मैं कह रही हूँ चुप रहो, पर जब आपके दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा है तो ये टू-वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा ना। मैं बोल रही हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा, तो सुनने का मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या समझ आया, तो अब इसके बाद मैं पूछूंगी आपसे, जो आंसर आएगा तो दैट मीन्स कि आपको समझ आ गया है। फाइन। Ellen Lewis has said about the communication, it is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. Sum of all things, like even my hands movement, right? It is adding to let you understand the things, right? उससे क्या होता है कि, और कहा जाता है कि जितना आप बातें करते हो वो हार्डली 10 to 15% होता है, रिमेनिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, किस तरीके से कह रहे हो, राइट? तो whatever things we are doing, whether it is body language, whether body language consists everything like eye movement and this and that and dress up and everything that consists. So anything what you try to make the other person understand, so that will come under the communication.
Fine. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Telling, मैं बोल रही हूँ, listening आप कर रहे हो, understanding जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसका आंसर दोगे. तो इन स्लाइड्स के ऊपर I want some answers from you people. I hope आप सबने अटेंडेंस मार्क कर लिया होगा. Yes? नहीं किया है तो कोई लिंक शेयर कर देना चैट पे प्लीज. मार्क कर लो. अभी we have 4 minutes of time. You can mark your attendance. जिनका रह गया हो अपने नेम नोट कर देना कि मैं नहीं मार्क कर पाई हूँ, ताकि मैं उसको देख लूंगी कि अगर किसी का छूट गया है. जैसे कि 2-3 बच्चे हैं जिनका नाम उसमें शायद अभी तक ऐड नहीं हुआ है. I'll check it out. Meanwhile, we all have to do one thing. What is that? We have, I hope it is clear. Meaning is clear, right? Yes or no? Meaning of communication is clear? Okay. Definition is clear? Definition is clear? Fine. Good enough. So now I am telling you one thing. The next slide is asking about, telling about nature of communication, right? Nature of communication. So now I want to understand nature of communication from you people. What is the nature of communication on the basis of what you have understood? Can we write it down here? आज के लिए काफी है, I know, पर वो कल करेंगे. पर आप थोड़ा सा आज का पता चल जाए कि आपने क्या समझा. कम्युनिकेशन को अगर बोलना हो कि इसके बिना, नेचर मीन्स व्हाट, विदाउट दैट थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, राइट? ठीक है. जैसे पानी है, वाटर है, तो वाटर का नेचर क्या है? इट टेक्स शेप इन द यूटेंसिल wherever you keep like that, okay? Liquid form, that is the nature of the water. Similarly, यहाँ पे कम्युनिकेशन में ऐसा क्या क्या चीज होना जरूरी है तभी वो कम्युनिकेशन है. नेचर है, बताइए जरा. Sending and receiving. So it's better to say sender and receiver. Fine. Feedback. Yes, feedback is also there. Feedback is what? Right now what I am asking. That is the feedback. मैम बैरियर्स नहीं होने चाहिए बीच में सेंडर और रिसीवर के. हाँ, बैरियर्स भी होते हैं. यस, बैरियर्स नहीं होने चाहिए बोला आपने, अच्छी बात Yes, है. ma'am. ओके. नेचर पूछ रही हूँ. और एक्सप्रेशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, गुड. ट्रस्ट वगैरह की तो बात नहीं है यहाँ पे. आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है, मैं तो पढ़ा रही हूँ. ठीक है. साइन एंड सिंबल्स, बोथ पीपल आर इंटरेस्टेड. नहीं, हमें यूनिवर्सिटी को लेटर भेजना, यूनिवर्सिटी पढ़े ना पढ़े हमें क्या मतलब है. मैं तो भेजूंगी, मेरा काम है. कल को कहेगी आपने नहीं किया था तो हम दिखाएंगे आपने भेजा था जी, आपने रिसीविंग दिया है. ये देखो, ये आप पर्सनल लेवल पे आ रहे हो. ट्रस्ट की बात कर रहे हैं और इसकी उसकी बात कर रहे हैं. ये पर्सनल लेवल की बात आ रही है. जो हमने मेजरली कहा, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहा है, वही है कि आपने जो कहा कि सेंडर रिसीवर होना चाहिए. सेंडिंग रिसीविंग, दैट मीन्स सेंडर एंड रिसीवर होना चाहिए. किसी ने कहा नॉइज नहीं होना चाहिए. टू वे प्रोसेस किसी ने कहा होना चाहिए. तो यस, दैट इज द थिंग्स, दीज आर द कॉमन थिंग्स वी हैव टू कीप व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप कुछ भेज रहे हो, जैसे हमने कहा लेटर हमें भेजना है यूनिवर्सिटी को, तो देयर इज समबडी देयर टू रिसीव ना. लेटर को रिसीविंग देते हैं, पढ़े ना पढ़े चिट्ठी, उस पर एक स्टैंप लगा के दे देते हैं कि आपका लेटर आया था, राइट? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे. एक्सप्रेशन, नेचर में ये सब चीजें नहीं आएंगी. ये सब आप लोग क्वालिटी में चले गए हो. लैंग्वेज, यस, लैंग्वेज दैट विल कम. यस, लैंग्वेज में जो होता है उसको हम बोलते हैं इधर सम चैनल, मीडियम. यस, मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट. अब गूगल करके मत बताना, आप लोग यहीं से बताना ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग को याद हो रहा है. ठीक है. तो आई विल शेयर द पीपीटी विद यू पीपल ओवर द चैट, व्हाट्सएप चैट. और आप लोग इसके आगे का पढ़ के आना. नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो और व्हेनेवर इट इज. ठीक है. हैप्पी न्यू ईयर मैम. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर मैम. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, ma'am. Thank you and same to you everyone. Thank you. And enjoy the life. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Take care, ma'am.